Hello and Assalamu alaikum dear students. So I welcome all of you in the third lecture of the series A to Z of Human Physiology. We are studying the first chapter of series, that is digestion and absorption. And in previous lectures, we discussed about what is physiology, what are its types, and we also discussed about the different organs of the human digestive system. In second lecture, we discussed about the histology of human gut. And in today's video, there will be two parts. In part one of this video, in part one of this lecture, we will discuss about the nerve supply to GIT. What are the different nerves and what are different components of the nervous system which innervate our GIT. And in part second, we will discuss about the first component of human digestive system, that is mouth and the mouth cavity or oral cavity. So let us friends start with the first part of the lecture, that is nerve supply to GIT. So nerve supply to GIT, we see that there are two types of nerve supplies to the GIT. So first of all, what is GIT? So GIT जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी बोला, GIT stands for gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract. And this gastrointestinal tract is also called as alimentary canal. इसका दूसरा नाम जो है इसको alimentary canal भी कहते हैं. अब नर्व सप्लाई जो जीआईटी की है, एलिमेंट्री कैनाल की है, इसमें दो तरह की नर्वस सप्लाई होती है. पहली नर्वस सप्लाई जो इसकी होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई. और दूसरा टाइप की जो नर्व सप्लाई हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक nerve supply. Intrinsic nerve supply, it includes those nerves which are present well within the alimentary canal, जो alimentary canal में ही पाए जाते हैं. Extrinsic nerve supply में आप देखेंगे इसमें वो nerves हैं जिनका origin जो है that is outside this nervous system. Say for example, it includes innervation of those nerves which arise from brain, say for example cranial nerves. It includes nerves which arise from the spinal cord as well. अब चूंकि intrinsic nerve supply में जो भी nerves जो है, they are present only in the alimentary canal. Therefore, this is what constitutes our enteric nervous system. जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बोला, that if there are the number of neurons outside this nervous system, so जिस तरह से मैंने पिछली बार आपको बोला था कि जो नर्वस सिस्टम के बाहर अगर कहीं पर नर्व्स मैक्सिमम होती है, they are present in our gut. That is why our alimentary canal is sometimes called as the second brain of our body. So वही nervous system, the nerves which are present, which form the intrinsic nerve supply of our alimentary canal, they are said to form the enteric nervous system. Enteric जो word यहाँ पर है, it is derived from the word enteron. ये enteron से निकला है, and this enteron means the digestive tract or the alimentary canal. तो मैं कह रहा था, this word has been derived from this enteron. And enteron, it means the alimentary canal or it means the gut. Alimentary canal या enteron का दूसरा नाम है, that is called as the enteron. And from this word enteron is derived this enteric nervous system. Enteric nervous system में जो nerves होंगी, they are present in the wall of this alimentary canal from esophagus part of alimentary canal up to anus. तो जो intrinsic nervous supply
जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ nerve supply of GIT, which is called as intrinsic nerve supply. It includes nerve fibers, it includes nerves which are present in wall of alimentary canal from esophagus to anus. These nerve fibers, which are component of intrinsic nerve supply, they form two types of complexes which are called as plexes. So we have two types of plexes. Plexes means that it is the interwoven, interconnected network of nerve fibers which are present within the wall of alimentary canal. उनको हम बोलते हैं plexes. So plexes जो alimentary canal में होती है, we find two types of such plexes. Number one is, first type of plexus is called as plexus of Auerbach. Plexus of Auerbach. And second plexus, दूसरा जो plexus होता है, that is called as Meissner's plexus. Meissner's plexus. Meissner's plexus, or it is also called as Remax plexus. उसका दूसरा नाम जो है, it's called as Remax plexus. Plexus of Auerbach और Meissner's plexus जो है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, यहां पर हम रिपीट करेंगे. Plexus of Auerbach जो है, it is the plexus, it is the network of nerve fibers which are present in muscularis externa of alimentary canal. अगर आपको alimentary canal का स्ट्रक्चर याद होगा, तो वहां पर हमने देखा था that alimentary canal, the wall of alimentary canal, it is formed of 4 layers. इसमें 4 तरह के layers थे. Innermost layer which is faces the lumen of alimentary canal, that is called as mucosa. And outside mucosa there is present submucosa. Outside submucosa there is present another layer which is called as muscularis externa. And outside muscularis externa we have one more layer that is called as serosa. जो पिछला वाला लेक्चर है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बिल्कुल इनको डिस्क्राइब किया है डिटेल में. यहां पर मैं सिर्फ रिपीट करूंगा इसलिए ताकि मैं आपको इन प्लेक्सेस की लोकेशन दिखा सकूं. तो मैं प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं. वी हैव इन इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई टू दिस एलिमेंट्री कैनाल, वी हैव 2 plexes, plexus of Auerbach and Meissner's plexus. अब जो ये plexus of Auerbach है, ये कहां पर होता है? तो यहां पर आप देखिए, जो हमारा ये muscularis externa जो है, this muscularis, within this muscularis externa we have this plexus of Auerbach. Plexus of Auerbach में इस muscularis externa में आपने देखा होगा कि उसमें 2 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं. पहला मसल फाइबर जो ग्रुप का होता है, that is called as the longitudinal muscles. मैं यहाँ पर longitudinal muscles सर्कल से दिखा रहा हूँ because this is the transverse section. तो ये वाला जो लेयर जो है, this is layer of longitudinal muscles. ठीक है, तो longitudinal muscles के इनसाइड में एक और मसल लेयर होता है which is that of circular muscles. Circular muscles जो है वो हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं because we are again studying the transverse section. अब यहाँ पर ये longitudinal muscles, these are longitudinal muscles, ये longitudinal muscles हैं, longitudinal muscles यहां पर है, और ये वाले muscles जो है they are the circular muscles. Circular muscles. अब इन longitudinal और circular muscles के बीच में हमारा ये वाला plexus होता है, that is plexus of Auerbach. तो यहां पर ये plexus होगा, this is plexus of Auerbach. An intricate, interwoven, interconnected network of nerves which is called as plexus of Auerbach. इसको हम plexus of Auerbach कहते हैं. Plexus of Auerbach चूंकि muscularis externa के बीच में होता है, because this plexus is present within the muscularis externa or within muscles of our alimentary canal. Therefore, for that reason, this plexus of Auerbach is also called as
माइएंट्रिक प्लेक्सस। इस वजह से जो ये प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक जो है इसका दूसरा नाम भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइएंट्रिक प्लेक्सस। माइएंट्रिक प्लेक्सस। मेसनर्स प्लेक्सस कहां पर होता है? मेसनर्स प्लेक्सस जो है, दिस प्लेक्सस, दिस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स, इट इज प्रेजेंट inside this circular muscles, that is in between these circular muscles and submucosa. ये वाला लेयर जो है यहां से यहां तक, this is submucosa, this is submucosa, और ये वाला ग्रीन वाला जो पोर्शन है, this is the circular muscle layer. अब circular muscles और इस submucosa के बीच में एक और नर्व नेटवर्क होती है, that nerve network is called as Meissner's plexus, उसको हम बोलते हैं Meissner's plexus. सो अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, यहां पर स्लाइटली है, यहां पर हमारा ये प्लेक्सस होता है, दिस प्लेक्सस विच इज प्रेजेंट, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर बनाता हूं, यहां पर एक और प्लेक्सस हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड एज Meissner's plexus. And where is it located? It is present below circular muscles, in between circular muscles and the submucosa. Submucosa और circular muscles के बीच में जो लेयर होता है, that layer is called as Meissner's plexus. ये वाला म्यूकोसा, और ये यहाँ पर सेंटर में हम बनाएंगे भी म्यूकोसा। तो यहाँ पर Meissner's plexus की आप लोकेशन देखिए, between below circular muscles and this portion is here called as submucosa. Submucosa और circular muscles के बीच में जो नर्व प्लेक्सस है, दिस प्लेक्सस इज कॉल्ड एज Meissner's plexus. चूंकि ये सबम्यूकोसा की ओर फेस करती है ये प्लेक्सस, therefore this plexus is also called, sometimes called as submucosal plexus. इसका दूसरा नाम जो है, it is also called as submucosal plexus. इसको submucosal plexus भी कहते हैं। हम प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक की ओर जाएंगे, हम थोड़ा बहुत हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज इट्स फंक्शन। प्लेक्सस जो हमारा ये इंट्रिंसिक नर्वस सप्लाई जो है, इट हैज टू फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय दीस टू टाइप्स ऑफ प्लेक्सस। इसकी जो फंक्शन है इंट्रिंसिक नर्वस सप्लाई की, एक फंक्शन इसकी ये है दैट इट विल कंट्रोल द लोकल मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो लोकल मूवमेंट्स है उनको जो कंट्रोल करता है, दैट इज आवर इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई। एंड अगेन व्हिच पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई विल कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी, दैट विल बी दिस प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक। प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक जो है ये कंट्रोल करता है जीआईटी की मूवमेंट को। इसी तरह से जो जीआईटी में डिफरेंट सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस ऑफ जीआईटी, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द Meissner's plexus और Remarque's plexus और सबम्यूकोसल प्लेक्सस। जो भी सिक्रीशंस जो प्रोड्यूस होती है जीआईटी में, उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल, उनकी सिक्रीशंस की रेगुलेशन जो है, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सेकंड प्लेक्सस, दैट इज Meissner's plexus. अब उसी के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बोलूंगा कि किस तरह से मूवमेंट्स जो होती है दे आर बीइंग रेगुलेटेड, और किस तरह के मूवमेंट्स हमारा एलिमेंट्री कैनाल दिखाता है। तो यहां पर आप देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ the plexus of Orbeck, plexus of Orbeck, which is also called as myenteric plexus. इसमें पोर्शन, इस पोर्शन में ऑब्जेक्टिव्स नीट के लिहाज से मैं फोकस करना चाहता हूं। तो नीट वाले जो बच्चे जो प्रिपेयर नीट के लिए कर रहे हैं, सो वो स्पेशली ये नोट करके रखें कि इस प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक की लोकेशन कहां पर है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वेयर इज प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक लोकेटेड, और इस पे ये क्वेश्चन भी आते हैं कि प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक की फंक्शन क्या है। सो एज फार एज इट इज लोकेशन इज कंसर्न, मैंने आपको बोला इट इज प्रेजेंट इन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इन बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। एज फार इट इज फंक्शन इज कंसर्न, इट रेगुलेट्स, इसकी फंक्शन क्या है,
that it regulates the GIT movements. जो gastrointestinal tract या alimentary canal में जो movements होती हैं, they are being controlled by this plexus. GIT में कौन कौन सी movement होती है? GIT movement क्यों करता है? GIT shows those localized movements like, say for example, आपने ये lower class में भी पढ़ा होगा, peristalsis. Peristalsis. It shows movements like जिनको हम बोलते हैं segmental movements. Segmental movements. Our GIT shows movements जिसको हम बोलते हैं pendular movements. These are the main three types of movements shown by our alimentary canal. Alimentary canal या GIT जो है उसमें हम ये तीन तरह की movements देखते हैं. Peristalsis, a wave-like progression जो हमारे ईसोफेगस से लेकर बराबर posterior most part of intestine तक पहुंचती है, which are meant for all these three types of movements. They are meant for propelling food. इनकी वजह से food जो है, food आगे की ओर या food या contents of intestine, they are or contents of GIT जो है, they are propelled. ये जो है ये आगे की ओर बढ़ते हैं, they are propelled onwards. दूसरा, इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो फूड के साथ मिक्स होते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस जो है दे मिक्स विद फूड, ये फूड के साथ जो है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं. तीसरी फंक्शन, दे आल्सो रिजल्ट इन चर्निंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ फूड. जिस तरह से हमारे स्टोमक में चर्निंग मूवमेंट्स होती है, जिस तरह से मिक्सर में आपने देखा होगा, जब हम मिक्सर में कुछ चीज क्रश करते हैं तो उसमें चर्निंग, वो रोटेटरी मूवमेंट की वजह से जो वो कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं फाइनर कंपोनेंट्स में. इसी तरह से जब हम कुछ चीज स्वालो करके जब हम कोई भी फूड वगैरह हमारे स्टोमक पे पहुंचता है तो स्टोमक जो है वो चर्निंग मूवमेंट्स दिखाता है. उन चर्निंग मूवमेंट्स की वजह से फूड जो है वो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है. सो वो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक होना, वो मूवमेंट्स जो है दोज आर कॉल्ड एज चर्निंग मूवमेंट्स, टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. तो उनकी वजह से फूड जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है. ये इन मूवमेंट्स की खासियत है. तीसरा, जब नंबर नेक्स्ट, अब जब फूड डाइजेस्ट हो, when food different components of food are now digested, now next function of our alimentary canal is the absorption of those digested materials. अब उन फूड कंपोनेंट्स को हमने एब्जॉर्ब करना है. तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्बिंग सरफेस की ओर लाने के लिए भी आप देखेंगे दैट दीज मूवमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. इन मूवमेंट्स की वजह से डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट नियरर टू एब्जॉर्बिंग सरफेस, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में जो है वो आसानी हो जाती है. सो देयरफॉर आई वाज टेलिंग यू दैट दिस प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक इट रेगुलेट्स दी GIT मूवमेंट्स. GIT मूवमेंट्स अब आपको समझ में आया होगा ये किस तरह की मूवमेंट्स होती है. ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सेगमेंटल मूवमेंट्स, मतलब कुछ सेगमेंट इंटेस्टाइन का या एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो लोकलाइज्ड मूवमेंट दिखाता है. इसी तरह से पेंडुलर मूवमेंट जो है ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है एलिमेंट्री कैनाल में होती है कंटेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की. सो ये मूवमेंट जो है इनकी ये फंक्शन है. ये फूड जो है प्रोपेल करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस को इस फूड के साथ मिक्स करवाते हैं, ये फूड को स्मॉलर फाइनर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और ये डाइजेस्टेड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब सरफेस की ओर ले जाते हैं ताकि इनकी इजी एब्जॉर्प्शन हो. अब प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक में कुछ नर्व फाइबर्स ऐसी होती हैं व्हिच विल ब्रिंग अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ दीज मूवमेंट्स, जिनकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो बहुत रैपिडली या तेजी से होंगी. ठीक है, तो कुछ नर्व फाइबर्स, some nerve fibers, not all nerve fibers, but some nerve fibers of this plexus of Auerbach. इस plexus of Auerbach में कुछ nerve fibers ऐसी होंगी which will result in accelerated GIT movements, जिनकी वजह से GIT movement जो है वो तेज से होंगी, एट हायर स्पीड से होंगी या रैपिडली होंगी. ठीक है, वो कौन से नर्व फाइबर्स होंगे? वो नर्व फाइबर्स जो होते हैं which will bring about accelerated movement of GIT, they are the excitatory nerve fibers.
न्यूरोफाइबर्स। ये एक्साइटेटरी न्यूरोफाइबर्स कैसे ये करती हैं? दे प्रोड्यूस एक्साइटेटरी न्यूरो हार्मोन्स। ये इस वजह से जीआईटी मूवमेंट्स को रैपिडली करवाती है या तेजी से करवाती है, क्योंकि इनके न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स जो है एक्साइटेटरी न्यूरोफाइबर्स के एंड्स जो होंगे, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं which are called as excitatory neurotransmitters. एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल, ये भी खास तौर से जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं ये खास तौर से ये पॉइंट नोट करके रखेंगे। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा है? विच अमंग द ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, या ऑब्जेक्टिव इस तरह से आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेस द एक्सेलरेटेड मूवमेंट ऑफ जीआईटी। ठीक है, तो वो मैं आपको ये लिखवा रहा हूं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेटरी न्यूरोफाइबर्स? नंबर फर्स्ट इज, पहला वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। दूसरा वाला इसमें है, दूसरा एक और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड एज सीरोटोनिन, उसको हम सीरोटोनिन कहते हैं। तीसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज सबस्टेंस पी, सबस्टेंस पी। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, दे आर दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच विल रिजल्ट इन रैपिड मूवमेंट ऑफ जीआईटी। से अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, द पर्सन माइट सफर डायरिया लाइक सिचुएशन, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभार स्ट्रेस की वजह से सीरोटोनिन ज्यादा रिलीज होता है, द पर्सन दैट टाइम सफर्स फ्रॉम डायरिया, ही हैज एपिसोड्स ऑफ डायरिया, नर्वस एपिसोड्स ऑफ डायरिया। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जीआईटी मूवमेंट्स जो है वो नॉर्मल से रैपिड हो जाती है। और वो क्यों रैपिड होगी? बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ, बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोफाइबर्स व्हिच विल प्रोड्यूस दीज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा बेटा, अब दूसरा न्यूरोफाइबर्स जो इसी प्लेक्स ऑफ ऑरबैक में होते हैं, दे आर अपोजिट, मतलब ये वाले एक्साइटेटरी थे, दे आर इनहिबिटरी। सो इनहिबिटरी न्यूरोफाइबर्स क्या करेंगे वो हम देखेंगे अब। सो नंबर सेकंड टाइप ऑफ न्यूरोफाइबर्स of this plex of Orbeck, they are called as inhibitory neurofibers, inhibitory neurofibers। inhibitory neurofibers का काम क्या है? they will produce inhibitory neurotransmitters, ये inhibitory neurotransmitters प्रोड्यूस करेंगे। inhibitory neurotransmitters का काम क्या होगा? inhibitory neurotransmitters will slow down the GIT movements, इनकी वजह से GIT movements जो होंगी they will be slower, वो कम होंगी। so the person, अगर ये ज्यादा stimulate हो जाएंगी, the person will suffer the constipation like condition। ठीक है, say for example, फिर से ये नोट करके रखिए कौन कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इनहिबिटरी है, तो वो आप लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, पहला वाला जो इसमें है दैट इज कॉल्ड एज VIP। so VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होता यहां पर, इट स्टैंड्स फॉर vasoactive inhibitory peptide। so this vasoactive inhibitory peptide क्या करेगा? it will slow down GIT movements। इसमें एक और एग्जांपल भी है, नंबर सेकंड एग्जांपल जो इसमें है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोटेंसिन, उसको हम बोलते हैं न्यूरोटेंसिन, अगेन एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसी तरह से एक और भी है, द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज एनकेफेलिन, एनकेफेलिन। तो बेटा इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में, एनकेफेलिन इज ए स्टिमुलेटरी और excitatory neurotransmitter or it is an inhibitory neurotransmitter, so it is an inhibitory neurotransmitter। अच्छा, इस तरह से भी आ सकता है, enkephalin will result in increased GIT movements, normal GIT movements और decreased GIT movements। तो enkephalin अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर ये होगा, that will result in slowing down of GIT movements, ये GIT movements को स्लो डाउन करेगा। सो ये वाले दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमने देखे थे,
ये वाले जो दो नर्व फाइबर्स हमने देखे, दे वर पार्ट्स ऑफ प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक और माइंट्रिक प्लेक्सस, जिसकी लोकेशन कहां पर है, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। पहला वाला कंपोनेंट किसका, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का। अब दूसरा वाला कंपोनेंट जो इसका है, दैट इज द मिजनर्स प्लेक्सस। मिजनर्स प्लेक्सस यानी वो प्लेक्सस विच इज प्रेजेंट बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड सबम्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स के बीच में जो वाला पोर्शन है। तो अब इसकी क्या फंक्शन है, ये वाला जो मिजनर्स प्लेक्सस है, इसमें इट डज नॉट रेगुलेट मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी। इसमें मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी में कोई रोल नहीं है, अलबत्ता इट रेगुलेट्स सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी। सो प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक हमने किया। अब हम दूसरा प्लेक्सस इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट प्लेक्सस, इसको हम ए वाला लिखेंगे। अब बी प्लेक्सस जो है, दैट इज प्लेक्सस ऑफ रीमैक। इसको हम रिमैक्स प्लेक्सस या प्लेक्स ऑफ रीमैक, या इसका दूसरा नाम जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मीजनर्स प्लेक्सस, या इसका तीसरा नाम भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सब म्यूकोजल प्लेक्सस। इसका दूसरा नाम जो है, एक और नाम जो है, दैट इज सब म्यूकोजल प्लेक्सस। अब इसकी क्या फंक्शन है, इसकी ये फंक्शन है कि ये इसके नर्व फाइबर्स जो होंगे, दे विल रेगुलेट सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी जो डिफरेंट जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती है, वो कब ज्यादा होंगी, कब कम होगी, या कितनी होनी चाहिए, दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द मीजनर्स प्लेक्सस। उनका जो कंट्रोल जो होता है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्लेक्सस ऑफ रीमैक। इसमें एक और फंक्शन है जो आप नोट करके रखेंगे, वो ये है कि दिस वेरी प्लेक्सस it brings about constriction of blood vessels of alimentary canal। alimentary canal को जो सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स, उनकी कंट्रैक्शन जो है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस जो है, वो उनकी कंट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये बेटा था हमारा पहला वाला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्व सप्लाई टू जीआईटी, जिसको हमने बोला था इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमने देखा कि इसमें दो तरह के प्लेक्सस हैं, प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक एंड प्लेक्सस ऑफ रीमैक। प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक में हमने देखा कि इट रेगुलेट्स ऑल मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी। जो जीआईटी की जो मूवमेंट्स है, उनको जो रेगुलेट करने का काम है, दैट इज दैट ऑफ प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक। दूसरा हमने देखा प्लेक्सस ऑफ रीमैक और मीजनर्स प्लेक्सस। इसकी फंक्शन हमने देखी, इट रेगुलेट्स सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। ये जीआईटी की सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। और इसका एक और रोल भी है, इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट कंस्ट्रक्शन और कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई या ये वाला पोर्शन, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई में हम अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की किस फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। तो हम अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई के बारे में। एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की ओर जाती है, these nerves are components of ANS। अभी ANS क्या है? ANS stands for autonomic nervous system। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर ये दिखाऊंगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहां से आया। एक्चुअली हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें, तो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, इसमें आप देखेंगे इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इट कंप्राइजेस टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं,
एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन, उसको हम ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं सुपाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज सुपाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें नर्व्स वो नर्व्स आती है which arise from brain and spinal cord. Say for example, brain से जो nerves arise होती है, those are called as cranial nerves. उनको हम cranial nerves बोलते हैं। So यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊंगा, the nerves which arise from brain, उन nerves को हम बोलते हैं, the nerves arising from brain, they are called as cranial nerves. Cranial nerves, उनको हम cranial nerves कहते हैं। इसी तरह से वो nerves which arise from spinal cord, जो सुपाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होंगी, दोज आर कॉल्ड एज सुपाइनल नर्व्स। और ये क्रैनियल नर्व्स एंड सुपाइनल नर्व्स जो है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रैनियल या सुपाइनल नर्व्स है, इसमें कुछ न्यूरॉन्स जो होती है, दे आर इनवॉलेंट्री एंड सम आर वॉलेंट्री। या और दूसरा तरीका इनको ये समझने का है इस तरह से, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब जो कुछ नर्व्स होती है, कुछ नर्व्स आप ऐसे देखोगे which are the motor nerves, they are motor nerves, वो मोटर नर्व्स होती है, और कुछ नर्व्स जो होती है दे आर सेंसरी नर्व्स। अब मोटर और सेंसरी नर्व्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मोटर नर्व्स वो नर्व्स है which bring information, instructions from central nervous system और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर्स। से फॉर एग्जांपल, इनका काम क्या है? इनका मोटर नर्व्स का काम है कि ये इंस्ट्रक्शंस लाएं, कहां से? फ्रॉम नर्वस सिस्टम, कहां तक? टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या हो सकता है? इफेक्टर्स कैन बी मसल्स, इफेक्टर्स कैन बी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड मसल्स को फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको कंट्रैक्ट करना है, मसल कंट्रैक्ट करेगी। ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको सिक्रीशन छोड़नी है, तो वो सिक्रीशन जोड़ेगा। So those nerves which come from, which bring instructions from central nervous system to the effectors, those are called as motor nerves. और sensory nerves क्या है? Sensory nerves वो nerves है which bring information from the receptors to central nervous system. इनका काम क्या है? ये information लाती है towards central nervous system. इनका काम है कि जो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्टेड बाय रिसेप्टर्स, दोज रिसेप्टर्स जो है, से फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगी और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगी। तो पहुंचाने का काम, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व्स का है, इंस्ट्रक्शन देने का काम दैट इज दोज ऑफ मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स में हम देखेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोटर नर्व्स। इसमें दो कंपोनेंट्स। इसमें एक कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो यहां पर हमने लिखा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अब वो मोटर नर्वस है विच आर नॉट अंडर विच मेरी विल में है that I am able to contract my arms, और जो भी skeletal muscles, मैक्सिमम आपके skeletal muscles हैं, उनको आप वॉलंटियरली कंट्रैक्ट करवा सकते हो। ठीक है, मैं अपनी टंग मसल को वॉलंटियरली मूव करवा सकता हूँ, मैं अपने आईलिड्स को वॉलंटियरली जो है उनको मूव करवा सकता हूँ। सो ये सभी वॉलंटरी जो मूवमेंट्स वगैरह है, इनके लिए जो मोटर नर्व्स इनर्वेट करेंगी, इनका जो वो सिस्टम बनाएंगी, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। So somatic nervous system is the voluntary component of nervous system which brings about voluntary actions, जिसे voluntary actions जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी मोटर नर्वस ही है, लेकिन यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम वॉलंटरली कोई मूवमेंट नहीं करवा सकते या कोई भी सिक्रेशन नहीं करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यही मैं आपको बोल रहा था, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई to our alimentary canal, they include nerve fibers. Now which type of nerve fibers? Motor nerve fibers, which are components of which part? Autonomic nervous system. ये autonomic nervous system के पार्ट इसमें है। तो autonomic nervous system में आप देखेंगे, अब इसमें दो सब टाइप्स हैं। एक इसमें अब दो सब कंपोनेंट्स होंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में।
which are antagonists of each other. Antagonist मतलब जो अपोजिट फंक्शन करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट, पहला वाला कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दे आर एंटागोनिस्ट्स. एंटागोनिस्ट का मतलब है दैट दे विल परफॉर्म अपोजिट फंक्शंस. से फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को इनर्वेट करती है, दीज विल ब्रिंग अबाउट, इनका काम जो है दे विल ब्रिंग अबाउट एक्सेलरेटेड जीआईटी मूवमेंट्स. इसे जीआईटी मूवमेंट्स जो होंगी, जीआईटी मूवमेंट्स, ना सिर्फ जीआईटी मूवमेंट्स बल्कि सिक्रीशन जो है, जीआईटी मूवमेंट्स एंड सिक्रीशंस ऑफ जीआईटी दे विल बी इंक्रीज्ड. उनकी जो सिक्रीशन और वो मूवमेंट्स जो है they will be increased when parasympathetic nerve fibers get stimulated. जो autonomic nervous system की जो parasympathetic component जो है जब वो stimulate होता है, उनके nerve fibers जब stimulate होंगे, what will they do? That they will bring about increased GIT movements. GIT movements जो है वो उनकी मूवमेंट इंक्रीज होगी. दूसरा जो सिक्रीशंस होंगी, जीआईटी में जो भी सिक्रीशंस होंगी, से फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट सैलिवेशन या गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. सो दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट. पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट कैसे करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये भी नर्व फाइबर्स है, ये भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगी. से फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी वही न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने इंट्रिंसिक नर्व फाइबर्स में देखा था, प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक के एक्साइटेटरी नर्व फाइबर्स में, वो यहां पर भी प्रोड्यूस होता है. ये नर्व फाइबर्स विच आर कंपोनेंट्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो नर्व फाइबर्स भी एसिटाइलकोलिन या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिक्रीट करती है, जिनकी वजह से जीआईटी मूवमेंट्स और सिक्रीशंस ऑफ जो जीआईटी ट्रैक जो है वो इंक्रीज हो जाती है. अब इनकी वजह से एक और आप देखेंगे, दिस विल रिजल्ट इन, इनकी वजह से जो स्फिंक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है, स्फिंक्टर्स हम बोलते हैं दिस इज ए सर्कुलर बैंड लाइक मसल, सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन्स में होता है, ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर सके. तो इस ये वाला जो नर्वस सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई, इनकी वजह से स्फिंक्टर्स जो होते हैं दे आर ओपन. वो स्फिंक्टर्स जो इनकी वजह से होते हैं, स्फिंक्टर्स ओपन रहते हैं बिकॉज व्हेन द नर्व फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर स्टिमुलेटेड. इसी तरह से दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा मैंने आपको बोला, दे आर एंटागोनिस्ट्स ऑफ ईच अदर. Antagonists of each other means that they will perform opposite functions. अब opposite function क्या है? ये क्या करेगा? Sympathetic nervous component जो है, this will bring about slowing down of GIT movements and this will inhibit secretions made by GIT. GIT से जो भी secretions होंगी, they will be slowed, they will be decreased. इसी तरह से GIT से जो भी movements होंगी, they will be slowed down by sympathetic nervous system. Normal conditions में there occurs a delicate balance between these two systems. Parasympathetic और sympathetic nervous system normal conditions में इस तरह से काम करती है कि जो movement जो है वो किसी खास रेट पे हो और सिक्रीशन किसी खास रेट पे हो, तो इम्बैलेंस नहीं होता है नॉर्मली जब ये मूवमेंट ज्यादा होंगी whenever there is such need, तो उसको फिर वापस लाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट जो है वो एक्शन में आएगा एंड दिस विल स्लो डाउन दीज मूवमेंट्स. सो इसका काम क्या है? वो इट विल स्लो डाउन जीआईटी मूवमेंट्स एंड जीआईटी सिक्रीशंस जो है, सिक्रीशंस दे विल बी डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएंगी. और स्फिंक्टर्स का काम क्या है? दिस विल रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्फिंक्टर्स.
तो इसकी वजह से स्फिंक्टर्स जो होते हैं बॉडी में वो क्लोज हो जाते हैं। और यहां पर जिस तरह से हमने देखा था एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये हो रहा है। यहां पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। से फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक और न्यूरोट्रांसमीटर आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन से फॉर एग्जांपल जो है दिस विल ब्रिंग अबाउट द स्लोइंग डाउन ऑफ द जीआईटी मूवमेंट्स एंड क्लोजिंग ऑफ द स्फिंक्टर्स। तो ये बेटा था हमारा आज का टॉपिक, पहला पार्ट हमारे लेक्चर का, जिसमें हमने डिस्कस किया नर्व सप्लाई टू जीआईटी। नर्व सप्लाई टू जीआईटी में हमने देखा दो कंपोनेंट्स हैं। पहला हमने देखा था इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, दूसरा हमने देखा एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई में हमने देखा कि उसमें दो तरह के प्लेक्सस होते हैं, प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक एंड मीजनर्स प्लेक्सस। और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई में हमने देखा कि इसमें वो नर्व फाइबर्स विच आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो जीआईटी को इनर्वेट करते हैं। हमने इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम में देखा, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम का जो प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक है इट रेगुलेट्स द जीआईटी मूवमेंट्स। इसी तरह से जो मीजनर्स प्लेक्सस होता है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का, इट रेगुलेट्स द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। और जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई कंट्रोल्स बोथ the movements as well as secretory activity of our GIT. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. So if you like it, please give it a thumbs up and please subscribe it. So हम next part में अब बढ़ेंगे the first component of our GIT. Thank you.